of 5 marks in our board examination for class 12th chemistry. So altogether there are 33 questions. End of the question paper will contain 3 questions of 5 marks and internal choices will be there. Some questions will have this sort of pattern. We got this question from the chapter coordinate complex. Here the question says using VPT, means we have to use the valence bond theory and identify A, B, C, D, E, F. In this tabular question we are having this A, B, C, D, E, F. Some fill-ups, means this sort of fill-ups we have to fill, and this question will carry half marks each. Means if we will able to find the A part, then we will get the half marks, half for B, C, and D, and E, and F. So altogether there are 6 parts, half marks for each part. And then second question is there, write the ionic equation for the following with the acidified potassium dichromate. This question is from D and F block elements, and we have to be write the ionic equation for hydrogen sulfide and ferrous sulfate. So first of all, let's see this question, and this question is based on the VPT valence bond theory, means where we will know the geometry if we know the coordination number, and if we know the oxidation number we are able to tell about the magnetic behavior of the central metal ion or atom. Somewhere geometry is provided to us and hybridization is given to us. Then we know about the configuration, central metal atom, complex कौन सा है, and how many number of unpairs are available here. So let's see the question. What is the way of attempting? The first coordination complex we are having, that is of cobalt, and that is having 4 fluoride ion with it. So अगर यहाँ पे coordination number 4 है, सिंपल सी बात है, बैलेंस बॉन्ड और VPT हमें बताती है कि if we are having a coordination number 4, then the जो हमारा compound है या coordinate complex है, it may be square planar and it may be tetrahedral. But here it is already specified that it is tetrahedral, paramagnetic, having, अगर tetrahedral है तो obvious सी बात है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो यहाँ पे कोबाल्ट है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, उसके पास अनपेयर्ड या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में कितने हैं 3d7। मींस अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 3d7 हम यहाँ पे डी जनरेट बना लेते हैं, and degenerate में we are having 7 electrons. We can make 7 electrons like this. Central metal ion, which is the central metal ion? तो यहाँ से अगर मैं कॉम्प्लेक्स देखती हूँ तो मुझे कॉम्प्लेक्स देख के पता चल जा रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, दैट इज कोबाल्ट। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी में है दैट इज 7। मींस इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 है तो 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज +2। तो जो हमारा कोबाल्ट है वो +2 ऑक्सीडेशन पे है, और आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं अगर हमें नहीं मालूम है x +1 क्योंकि फ्लोराइड पे -1 का चार्ज है, ओवरऑल यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल या 4 एटम या 4 आयन है, ओवरऑल चार्ज -2 है, एंड दैट विल गिव यू +2।
तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है। तो यहाँ इसके पास टोटल 4 है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे है तो 2 पे है, दैट इज यू कैन राइट कोबाल्ट 2+। तो जो बी है वो हमारा सॉल्व हो गया। बट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर सीबीएसई आंसर या क्वेश्चन पेपर योर आंसर शीट पे जब आपने आंसर लिखना है, दैट टाइम यू कैन जस्ट राइट दैट जो भी आपका क्वेश्चन नंबर ये 31, 32, 33, क्योंकि एट द एंड ही वी आर गेटिंग द 5 मार्क्स क्वेश्चन, then you can divide the question into parts and you can simply write जो भी question होगा that answer question number के बाद यहाँ पे 1 part लिखा है तो इसमें जो B है that is cobalt 2+, ये हमारा आंसर हो गया। एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने यहाँ पे डीजेनरेट बनाया है, हमें यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल हियर? 3। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 अवेलेबल है। यू कैन सिंपली राइट, अगर हमारा जो बी है दैट इज कोबाल्ट है 2+ पे, और जो हमारा ए पार्ट है वो अनपेड यहाँ पे 3 है। देन इन सेकेंड पार्ट वी आर हैविंग दिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में ऑक्सिलेटो हमारा एक लीगेंड है जिसके ऊपर जो बाइडेंटेड लीगेंड है, और एक एक्वा यहाँ पे लीगेंड है जिसके ऊपर जो कि हमारा यूनिडेंटेड है बट हैविंग अ नो चार्ज ऑन इट। यहाँ पे -2 है और टोटल 2 है, मींस +4 पे चला जाएगा। बट मुझे यहाँ पे दिया है कि जो क्रोमियम है वो अपने 3rd ऑक्सीडेशन स्टेज पे अवेलेबल है। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 24 होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एक्सेप्शनल केस होता है 4s1 3d5। हियर इट इज अवेलेबल एट chromium 3 1 means we 3+ means we are having 3d2। 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट आपको वहां पे उन्होंने फिर से दिया कि 3d3 है, 3d3 पे अवेलेबल है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल आयन। अगर ऑक्टाहेड्रल है और मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ये जो हमारा ऑक्सिलेटो है दैट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग लिगेंड कि वो पुश करे, जो 2 वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पुश करे और पुश करके वो उन्हें आगे मूव करेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टोटल यहाँ पे 6 2 इसके हैं, बट एक ऑक्सिलेटो जो है वो 2 हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल 4 देगा, और 2 यहाँ पे एक्वा से आ जाएंगे, टोटल यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और जो कॉन्फ़िगरेशन है मेटल आयन की दैट इज 3d3। तो 3d3 है मींस 3d3 है एंड मींस व्हाट वी आर हैविंग 3d3। तो यहाँ पे एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, ये 2 यहाँ पे वैकेंट है और ये इसको पुश नहीं कर पाएगा। जो हमारा ऑक्सिलेटो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे, पुश नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ अनपेड भी दिए हैं, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। देन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2, ये D2 हमारा वेकेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, तो व्हाट वी विल गेट, ये हमारा डी जनरेट आ जाएगा जिसमें कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4s भी फिर एम्प्टी है और 4p भी एम्प्टी है। तो यहाँ पे जो 2 एक्वा से आ जाएंगे, बाकी 2 पेयर जो है वो एक ऑक्सिलेटो से आएंगे और 2 पेयर दूसरे ऑक्सिलेटो से आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज D2 sp3, बिकॉज हम इनर D को यूज कर रहे हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बन रहे हैं
And then we have to tell about the magnetic behavior. अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो कैसा हो जाएगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक. अगर अनपेड अवेलेबल है तो पैरामैग्नेटिक. इस तरह से we will get half marks for this, half for this, and while we are writing the hybridization, because valence bond theory कहती है कि if the coordination number is 6, we can have a two type of hybridization. Either we are having D2sp3 or sp3d2, but oxalato is not a strong field ligand according to electrochemical series. It is not able to push unpaired electrons. So 2d हमें इनर जो सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं 1,4s and 3p हम यूज करेंगे and we are getting D2sp3 half marks for this, and this magnetic behavior जो है that is paramagnetic and we are getting half marks for this. Till now we succeed to get 2 marks. Now the third part, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, निकल का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कार्बोनिल हमारा लिगेंड है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी निकल की दैट इज 4s2 3d8, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट पे अवेलेबल है. दैट इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर. नाउ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल. सो कार्बोनिल यहाँ पे लिगेंड है व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड इट इज एबल टू मूव. अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर देगा उन्हें अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और हाइब्रिडाइजेशन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और डायमैग्नेटिक है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3. अगर कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता तो हम स्क्वायर प्लैनर के लिए सोचते, बट यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ज्योमेट्री अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है वी आर हैविंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड दैट इज द tetrahedral. So all together in like this you can get the 3 marks. Now we are having a second part of this question. Write the ionic equations for the following with the acidified potassium dichromate. पहला हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की एसिडिफाइड इक्वेशन लिखनी है. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. 1 mark for each, and that is हम यहाँ पे एसिडिफाइड ले रहे हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले रहे हैं. तो हाउ वी विल रिएक्ट दैट, वी कैन टेक K2. आयनिक इक्वेशन लिखनी है हमने, वी हैव टू राइट द आयनिक इक्वेशन. हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले, दैट इज, एंड वी विल टेक सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिफाइड रिएक्शन हो रहा है, एंड व्हाट यू आर गेटिंग दैट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस दैट इज क्रोमेट सल्फेट. तो यहाँ पे 2 and SO4 3 plus 4 water molecule, and along with that we will get the oxygen. In order to do the balancing of this, यहाँ पे 3 सल्फेट है और यहाँ पे 1, तो we are having 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, and water 8 है, 8 हो चुका है. पोटेशियम भी हमने पूरा लिख लिया है और क्रोमियम भी पूरा आ गया है. 3 ऑक्सीजन हमारे बच रहे हैं, हमने इस तरह लिख लिया. अब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका,
इसी में सेकेंड पार्ट हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, अब क्योंकि एसिडिफाइड रिएक्शन हो रहा है, मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, तो मैं ऑक्सीजन यहाँ लिख लूंगी एंड वी विल गेट, यहाँ पे सल्फर मिल जाएगा मुझे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं 3 ऑक्सीजन है तो मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह लिखती हूँ और 6, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा और इन ऑर्डर टू डू द बैलेंसिंग हम इस तरह से इस इक्वेशन को लिख लेंगे। आप अब इस कंप्लीट इक्वेशन को भी उतार सकते हैं। व्हाटएवर आई रोट ऑन अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो सारा कुछ ऐसे ही लिख लेंगे और उस इक्वेशन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वो पहले लिखा जाएगा और फिर राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब हम इसे किस तरह लिखेंगे, दैट इज K2Cr2O7 प्लस 4, हमारे पास टोटल 4 सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस 3 हाइड्रोजन सल्फाइड है, along with that 3 oxygen. What we are getting on this side, that is potassium sulfate plus chromium sulfate and 4 plus 3, total 7 molecule of water plus 3 sulfur atom and plus 3 oxygen. These are available on both sides. We can cancel out. ये complete equation हो गई। आप simple ionic equation भी लिख सकते हैं for this. How we will write the ionic equation for this? That is Cr2O7 chromate ion plus 4 into 2, 8 proton molecule and what we are getting, हम यहाँ पे plus 3 hydrogen sulfide giving us 2 molecule of chromium in 3rd oxidation state plus 3 sulfur plus 7 molecule of water. So this is the complete ionic equation. इस तरह से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या कंप्लीट इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। सेम वे वी कैन राइट फॉर द आयरन। आयरन के लिए हम कैसे लिखेंगे, दैट इज K2Cr2O7 प्लस FeSO4, पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज H2SO4, क्या मिलेगा हमें, K2SO4 प्लस we will get Cr2 chromium sulfate plus water molecule plus oxygen. So here K2 है बैलेंस हो गया है, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया है, सल्फेट यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, 4 है, तो what we will do, we will make a 4 here and water भी बैलेंस हो गया, 3 ऑक्सीजन जो है वो प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 3 ऑक्सीजन एंड देन सेकेंड जो इसका हम पार्ट लिखेंगे दैट इज फेरस सल्फेट ले लेंगे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे एंड व्हाट वी आर गेटिंग FeSO4, ये 2 और ये 3 प्लस मुझे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लेना है और यहाँ हम ऑक्सीजन भी लेंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वहां पे 3 है, 3 लेना पड़ेगा एंड FeSO4, यहाँ पे F सिंगल है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं इसे 6 लेती हूँ और यहाँ हम इसके साथ 3 लगाते हैं तो ये टोटल 9 हो रहे हैं और 6, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 3, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 3। तो ये आ गया, हम इसकी कंप्लीट इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज
whatever we are having on a left hand side वो हम left hand side पे लिखेंगे। अपने मैंने अपने बहुत पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये सारे आयोनिक इक्वेशंस दिए हुए हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब चैनल को करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूँ वो आपके पास वैसे ही जल्दी पहुंच जाए। लेट्स डू दी complete equation here. What we are getting, K2 Cr2 O7 plus total we are having 3 and 7 sulfuric acid plus 6 ferrous sulfate। जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया वो सारा ऐसे आ जा रहा है K2 and 7 and FeSO4 plus 3 oxygen atom giving us K2SO4 plus chromium sulfate जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा वापस plus 3 FeSO4 ferrous sulfate मिल गया हमें प्लस टोटल 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इधर 3 ऑक्सीजन। ये दोनों उधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कंप्लीट आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। क्रोमेट आयन प्लस टोटल 14 एसिडिक या हमारा जो भी हाइड्रोजन आयन के 14 आयन लिख लेंगे प्लस 6 यहाँ पे हम आयरन सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखेंगे एंड व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 6 आयरन मिलेंगे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लस क्रोमियम मिलेगा हमें थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। along with that we are getting 7 molecule of water. So this is a complete ionic equation for this ferrous sulfate with the acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप अकेला इस इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, उसे पार्ट्स में भी लिख सकते हैं, आप इसे भी अकेले को लिख सकते हैं। ये मैंने 2 पार्ट्स में पहले आपको दिखाया है किस तरह से लिखेंगे और इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर चेक कर सकते हैं। ये देन हम आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंड ट्राई टू फर्स्ट राइट हाउ वी हैव टू बी बैलेंस बोथ साइड which and what type of acid and complex is reacting and how they are forming. So here we will get, अगर 1 marks question है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो you are getting half for this and direct half marks for this and half for this, तो आप इसको parts में भी लिख सकते हैं। So by this we can get a 5 marks and we can attempt it very clearly. For any doubt you can give me a comment and मिलते हैं next video lecture में with more CBSE sample questions and इसका screenshot ले लिया। Till then you take care and bye bye.